شہر میں پیش آئے سنسنی خیز خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ قتل معاملے کے ملزم محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت پر سوال اٹھاتے ہوئے مقتول کے فرزند عدالت سے رجوع ہوئے۔ انہوں نے نامپلی کرمنل کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے عدالت سے خواہش کی کہ ضمانت کے معاملے میں سماعت سے پہلے ان کے موقف کی بھی سماعت کی جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالت میں داخل کردہ درخواست کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ وہ لوگ بیل کے لیے پٹیشن بھی جو ہے کافی بار ڈالے ہیں، تو ابھی بھی آج ڈالنے کے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے کیا چل رہا تھا؟ نہیں، بیل پٹیشن ایک ہی ڈالی ہے، مرڈر ایکیوز محبوب عالم خان ایک ہی پٹیشن فائل کی ہے، جس میں میں نے آج امپلیٹ پٹیشن فائل کی مجھے سننے کے لیے۔ ان کا مرڈر ایکیوز محبوب عالم خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایج اولڈ ہے، 80 ایئرس کے بوڑھے ہیں، اور کچھ ایویڈنس نہیں ملا ان کے خلاف، اور ان کے وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ پولیٹیکل کانسپریسی، کوئی پولیٹیکل لوگوں کے سامنے وہ جھک نہیں رہے تھے، اس لیے ایسا کیا پولیٹیکل کانسپریسی کا ایک رنگ دے کر کورٹ کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارے حیدرآباد کو معلوم ہے کیسے بہترین ایکٹر ہے محبوب عالم خان۔ میں نے پولیس کو بھی کہا ہے، وہ جو ایکٹنگ سے لایا جا رہا تھا وہ بالکل اچھے ایکٹر ہے، آپ اور میں نہیں کر سکتے، ویسے انڈین پش اپس کرتے ہیں آج بھی 80 ایئرس کی عمر میں، اوریجنل خائصو ہے، تو میں ہیلتھ نہیں ہے، بوڑھا ہوں، یہ پورے کیا ہے، بہت اچھے ایکٹر اور بہت اچھے کوٹ کرافٹ ہے ان کے پاس، بہت اچھے طریقے سے۔ تو کورٹ کو مس گائیڈ کرنا، گمراہ کرنا، یہ تو انہوں 50 سالہ مقدمہ بازی لڑتے آئے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے پلے بڑے، ان کو بھی مقدمہ بازی اچھی طریقے سے آتی ہے، ہم بھی قانون داں ہیں، انہوں بھی لڑے ہوئے، تو کورٹ کو مس گائیڈ کرنا، گمراہ کرنا، کیسا ایک کراکوڈائل ٹیئرس جو کہتے ہیں نا، مگرمچھ کے آنسو، وہ بہانے میں محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان بہت مہارت رکھتے ہیں، تو ہم بھی اپوز کریں گے، اس لیے میں نے درخواست ڈالی ہے۔ پی پی تو سنیں گے، پی پی کو سنیں گے، مگر ڈیفیکٹو کمپلینٹ وکٹم مجھے بھی سننا ضروری ہے، کہ میں کیا جانتا ہوں، پی پی بھی جانتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں، کچھ اور بھی ہو سکتا، اور جو کانسپریسی والد کے خلاف کی گئی تھی اس کو صحیح طریقے سے کورٹ کے سامنے میں پریزنٹ کر سکتا ہوں۔ یہ محبوب عالم خان مرڈر ایکیوز محبوب عالم خان اور مرڈر ایکیوز مجاہد عالم خان کے جو گمراہ کرنے کے ٹیکٹکس ہے، اس کو کیسے طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، اس لیے مجھے بھی سننا کورٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران آبگیر علاقوں میں شدید بارش کے باعث ہمایت ساگر کی سطح میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام نے اتوار کی شام اس کے ایک دروازے کو کھول کر زائد پانی کو چھوڑ دیا۔ اس موقع پر راجندر نگر کے ایم ایل اے پرکاش گوڑ، محکمہ آبپاشی کے عہدیدار اور دیگر حکام موجود تھے۔ نشیبی علاقوں کے رہنے والوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نلگنڈے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، صرف ماضی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کو لوٹنے پر عوام نے بی آر ایس کو مسترد کر دیا ہے اور پارٹی کا پہلا خاندان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے موسیٰ ندی کی بحالی کے منصوبے پر کہا کہ مخالفت، رکاوٹوں یا خودکشی کی دھمکیوں کے باوجود یہ منصوبہ جاری رہے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس قائدین نے اقتدار کے لیے الیکشن، سلیکشن اور کلیکشن کے ذریعے دولت جمع کی، جبکہ ریاستی تحریک میں قربانیوں کے دعوے کیے۔ انہوں نے کنڈا لکشمن باپو جی کو نظر انداز کرنے پر بھی بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ نے سوریا پیٹ کے بی آر ایس ایم ایل اے جگدیش ریڈی پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس وہاں دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کرے گی۔ మా చామల కిరణ్ రెడ్డి ఏదైతే కోరుకుంటుండో ఆయన పార్లమెంట్లో ఈ మూసి కంపు నుంచి, కాలుష్యం నుంచి నల్గొండ బిడ్డలకు విముక్తి కలిగించే బాధ్యత నాది, ఒట్టేసి చెప్తున్నా, మూసి పూర్తి చేస్తా। ఎవడు వచ్చినా, ఎవడు అడ్డం పడ్డా, ఎవడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా మూసీలేసి తొక్కుతా, మూసి నది ప్రక్షాళన చేస్తా। ఎవడెవడైతే మాట్లాడుతుండో రాసుకోండి, 94 నుంచి 2004 2 సార్లు టీడీపీ, 2004 నుంచి 2014 2 సార్లు కాంగ్రెస్, 2014 నుంచి 2024 వరకు 2 సార్లు బీఆర్ఎస్। ఇవాళ నేను చెప్తున్న ఈ వేదిక మీద నుంచి నల్గొండ బిడ్డల ఆశీర్వాదంతో, మీ ఉత్సాహంతో 2024 నుంచి 2034 వరకు 3 రంగుల జెండా ఎగురుతుంది। بوراونڈے کے بھرت نگر علاقے کے 40 سالہ شیخ مجیب ہفتے کی رات اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ شناختی دستاویزات میں غلطیوں اور ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر کی حیثیت سے متاثر ہونے کے خدشے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ ان کے مطابق دستاویزات کی اصلاح کے لیے کافی رقم خرچ کرنے کے باوجود مسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ 10ویں جماعت کے مارچ میں منعقدہ سالانہ امتحانات میں کامیابی کا تناسب 95.15% ریکارڈ کیا گیا تھا، تاہم سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج شامل کیے جانے کے بعد
बहसत मजमूई कामयाबी की शरह बढ़कर 99.10% हो गई है। महकमा तालीमात के मुताबिक बाकी रह जाने वाले 4,618 तलबा को जुलाई में टास्क के जरिए इम्तहान देने का मौका फराहम किया जाएगा, ताकि इस मरबूत निज़ाम के तहत SSC इम्तहान देने वाला कोई भी तालिब इल्म नाकाम ना रहे। कोकटपल्ली के वद्देपल्ली निकलो के करीब DBS बैंक के ATM सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। आग के साथ कसीफ धुआं भी उठने से इलाके में खौफ देखा गया। मुकामी अफराद ने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश की। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की मुमकिना वजह है। वनपर्ती जिले के पेबर के करीब आज RTC बस टू व्हीलर गाड़ी को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये बस मंत्रालयम से वनपर्ती जा रही थी और इसमें तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। उधर पोलावरम जिले के मारेडोपल्ली घाट रोड पर गुज़िश्ता रोज एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। राजमंदरी से भद्राचलम जाने वाली RTC बस, जिसमें तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे, सामने से आने वाली एक लारी से टक्कर से बचने की कोशिश में सड़क से नीचे उतर गई। खुशकिस्मती से बस खाई के किनारे पर ही रुक गई, जिससे एक बड़ा सानहा टल गया। राजेंद्र नगर के पिलर नंबर 227 के करीब एक ऑटो सड़क किनारे खड़ी ट्रैवल बस के पिछले हिस्से से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. वजीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हल्के असम्बली पालेर में बकाया बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एक कंट्रैक्टर ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। यह वाक़या खम्मम रूरल मंडल के दानावाई गुडम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेश आया, जहां मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम के तहत मरम्मती काम अंजाम दिए गए थे। कंट्रैक्टर अयोध्या, जिसने स्कूल की मरम्मत का काम मुकम्मल किया था, अपने अरकान ख़ानदान के साथ स्कूल को कुफल लगाकर पेट्रोल का डब्बा हाथ में लेकर एहतजाज पर बैठ गया। इसका कहना है कि साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर में 10 लाख रुपए के बिल अदा कर दिए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत बकाया रकम अदा न करने की वजह से उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसने इल्ज़ाम लगाया कि बकाया बिलों की अदायगी के लिए वो ज़िला कलेक्टर से लेकर निचली सतह के हुकाम तक बार बार चक्कर काट चुका है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तेलंगाना भर में SIR मुहिम तेजी के साथ जारी है, जिसके तहत तमाम राय दहिंदों से अपील की गई है कि वो BLOs की जानिब से फराहम करदा इनुमरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर पुर करें, ताकि उनका नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ ना हो। इत्तलात के मुताबिक 2022 से 2025 की फहरिस्त राय दहिंदगान की बुनियाद पर हुस्नाबाद असम्बली हल्के में तकरीबन 60,000 वोट और रियासत भर में तकरीबन 1 करोड़ वोट इस वक्त न्यूट्रल या गैर तस्दीक शुदा ज़ुमरे में है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोट ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि मुतल्लिक़ा फॉर्म पुर करके मतलूबा दस्तावेज़ात दाखिल करते हुए इन वोटों को बरकरार रखा जा सकता है। हुक्काम के मुताबिक तमाम वोटरों के लिए फॉर्म पुर करना ज़रूरी है, जबकि फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा 31 जुलाई को जारी किया जाएगा। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि एक भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज ना हो। आवाम से अपील की गई है कि वो जमहूरियत में वोट उनका सबसे बड़ा हक और ताकत है, इसलिए वोटर फहरिस्त की नजरसानी के अमल में भरपूर ताउन करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रग्बी प्रीमियर लीग के फाइनल में कामयाबी हासिल करने वाली हैदराबाद हीरोज की टीम को फातिहाना ट्रॉफी पेश की और टीम को मुबारकबाद पेश की। फातिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स और MS कैटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट की इफ्तिताई तकरीब कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी मिर्ज़ा रहमत बेग MLC मजलिस ने शिरकत की, जबकि मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद कारपोरेटर, मुर्तज़ा अली, मुफ्ती मुजाहिद खान, मोहम्मद हबीबुर्रहमान, मोहम्मद अब्दुल करीम और सैयद अय्यूब अली हुसैनी के बशमूल दीगर मौजूद शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थी।
मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों, उलमा, समाजी व सियासी शख्सियात व शुरका का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा टूर्स एंड ट्रैवल की जानिब से मैं मोहम्मद अशफाक अली फातिमा टूर्स एंड ट्रैवल का ओनर बोल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 28 जून संडे 2026 की नई ऑफिस की इफ्तिदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान उम्रे के पैकेज और जो इसमें उम्रे के पैकेजेस रहेंगे, हज के पैकेजेस रहेंगे इंशाल्लाह, और जो सो हॉलीडे पैकेजेस रहेंगे और अदर कंट्रीज़ के वीज़ा, उम्रा वीज़ा, जैसा उम्रा वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, जैसा दुबई वीज़ा वगैरह। SIR मुहिम के तहत तेलंगाना भर में अब तक 1,43,17,635 मर्दमशुमारी फॉर्म्स तकसीम किए जा चुके हैं, जो निशाने का 42.33% है। हुकाम के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर राय दहिंदों की तफसीलात हासिल कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट को शफाफ और दुरुस्त बनाया जा सके। आवाम से अपील की गई है कि वो इस अमल में मुकम्मल ताउन करें। वेलिंगटन में एक बड़ा तैयारे का हादसा टल गया। एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट शदीद बारिश और ख़तरनाक विंड शेयर के बायस लैंडिंग के दौरान बड़े हादसे से महफूज रही। जैसे ही तैयारा रनवे पर उतरने वाला था, पायलट ने महज 2 सेकंड के अंदर लैंडिंग मंसूख करते हुए तैयारे को दोबारा फिजा में बुलंद कर दिया। पायलट की बरवक्त चौकसी से सैकड़ों अफराद की जानें बच गईं और एक बड़ा हादसा टल गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वो इन तकारीब में शिरकत करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तकरीब में हिंदुस्तानी बर्री और बहरी अफवाज के दस्ते खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। सरकर्दा इस्लामी स्कॉलर, मुसन्निफ और माहिर तालीम मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 72 बरस थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,